जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। निताई गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 52 है आज। तो यावानहं ग्रथा भावो यद्रूपगुणकर्मका तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मद अनुग्रहात्। यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मका तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मद अनुग्रहात्। यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मका तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मद अनुग्रहात्। तो हमने देखा कि यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावत्यान। तो हमने कहा था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दे करके उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। और क्या शिक्षा ब्रह्मा जी को दी, तो वो कल वाले श्लोक में हमने देखा। तो कल वाले श्लोक में हमने कहा था, हमने देखा कि भगवान ब्रह्मा जी को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं जो भी तुमसे कहूंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो केवल वैज्ञानिक नहीं है, अपितु रहस्यों से भी भरा हुआ है। तो वैज्ञानिक तो है ही, साथ में बहुत रहस्यों से भी भरा हुआ है। तो आज क्या क्या बोल रहे हैं, तो आइए अब बोल रहे हैं, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है ना, प्रभु कह रहे हैं जब मेरी कृपा होती है तो मेरी कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व का भी ज्ञान हो जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी का ज्ञान हो जाएगा, मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है, मैं कैसे दिखता हूँ वो भी ज्ञान हो जाएगा, मेरे गुण क्या क्या है और मेरा लीला क्या क्या है, इन सब के बारे में जो सत्य है उस सत्य के बारे में आपको पता चल जाता है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तात्पर्य को देखेंगे। If someone can read, he or she is most welcomed here. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhu. The transcendental personal forms of the Lord are a mystery, and the symptoms of these forms, which are absolutely different from anything made of mundane elements, are also mysterious. The innumerable forms of the Lord, such as Shyamasundar, Narayan, Ram, and Gaurasundar, the colors of these forms, white, red, yellow, cloud-like Shyam, and others. His qualities as the responsive personality of Godhead to pure devotees and as impersonal Brahman to dry speculators. His uncommon activities like lifting Govardhan Hill, marrying more than 16,000 queens at Dwarka, and entering the Rasa dance with the damsels of Raja, expanding himself in as many forms as there were damsels in the dance. These and innumerable other uncommon acts and attributes are also mysteries, one aspect of which is presented in the scientific knowledge of the Bhagavad Gita, which is read and adored all over the world which is read and adored all over the world by all classes of scholars with as many interpretations as there are empiric philosophers. The truth of these mysteries was revealed to Brahma by the descending process without the help of the ascending one. The Lord's mercy descends to a devotee like Brahma, and through Brahma to Narad, from Narad to Vyasa, from Vyasadeva to Sukadeva, and so on in the bona fide chain of disciplic succession. We cannot discover the mysteries of the Lord by our mundane endeavors. They are only revealed by His grace to the proper devotees. These mysteries are gradually disclosed to the various grades of devotees in proportion to the gradual development of their service attitude.
In other words, impersonalists who depend upon the strength of their poor fund of knowledge and morbid speculative habits without submission and service in the forms of hearing, chanting, and others mentioned above cannot penetrate to the mysterious region of transcendence where the supreme truth is a transcendental person free from all tinges of the material elements. Discovering the mystery of the Lord eliminates the impersonal feature realized by common spiritualists who are merely trying to enter the spiritual reason from the mundane platform. ओके, तो यहाँ पर भगवान और हम एक जैसे दिखते हैं बाहर से, लेकिन फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? कह रहे हैं कि भगवान जो ये संसारी तत्व है, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। वायु, जल, अग्नि और वायु, जल, अग्नि, धरती और ईथर, आकाश। इन 4 तत्वों से मिलके बना हुआ है, 5 तत्वों से। लेकिन भगवान का शरीर इन 5 तत्वों से पूरी तरह से डिफरेंट है, which are absolutely different from anything made of mundane element. इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व नहीं है भगवान के। भगवान के शरीर में कौन से तत्व हैं फिर? भगवान के शरीर में है सत, चित और आनंद। भगवान के शरीर में सत वाला अंग है, चित वाला अंग है और आनंद है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। तो कैसे पता चलता है? इनकी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा। भगवान गोवर्धन उठा देते हैं, वो भी छोटी सी उंगली, जो कि हम नहीं उठा सकते। भगवान 16,108 किनसे? गोपियों से शादी करते हैं। हम एक शादी करते हैं, उसी में ही परेशान हो जाते हैं। दो तो बस की नहीं आजकल। लेकिन भगवान 16,108 रानियों को, और उनको ऐसे नहीं कि अभाव में रखते हैं, अरे बेचारी बहुत सारी है ना, तो कमी है उनके यहाँ खाने पीने की, ऐसा नहीं। भगवान क्या करते हैं? भगवान एक-एक रानी के लिए एक-एक बड़े महल का विस्तार करते हैं, और एक ही समय में भगवान हर रानी के महल में दिखते हैं, हर गोपियों के महल में दिखते हैं। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? तो इसी प्रकार से हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम में और भगवान में अंतर है। तो वो भगवान है, वो अचिंत्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और 16,108 गोपियां नहीं, हम सब उन्हीं के हैं असल में। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक शादी भी करते हैं, वो शादी भी हमारी चोरी है। भगवान 16,108 क्या 16 करोड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है और हम भगवान नहीं है। इसीलिए हम एक भी करते हैं, और अगर उस एक को भी शास्त्रों के अनुसार नहीं करते हैं, लीगल ढंग से नहीं करते हैं, तो वो भी हमारे लिए चोरी है। भगवान के लिए कुछ भी चोरी नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। और उस सब कुछ में से अगर भगवान कुछ ले लेते हैं, तो भगवान चोर थोड़ी है। चोर तो हम लोग हैं, जो बिना भगवान को ऑफर किए कुछ भी खाते हैं, बिना भगवान को ऑफर किए कोई भी चीज यूज करते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। भगवान का है, इसलिए भगवान से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार से तो साकार जो रूप है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, इन सब चीजों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी गुरु परंपरा में रह करके हम इस बात को सीख सकते हैं। तो इससे आगे हम कल बात करेंगे। फिलहाल आप नरसिंह आरती कीजिए, और नरसिंह आरती करके क्लास को खत्म कर देना। ठीक है माता जी? जी